electric part, and that is what happens in cyclotron. Cyclotron is a device which is used to increase the kinetic energy of the charged particles. For different investigations, हमको जरूरत होती है हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स की, और उनको उसको अचीव करने में हाई एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स अचीव करने में साइक्लोट्रॉन इज द key to our success, or it is the key instruments to deliver that thing. Cyclotron is a machine to accelerate charged particles or ions to a high energy. It was invented by Lawrence and Livingston in 34 to investigate nuclear structure. It uses both electric and magnetic field in combination to increase the energy of charged particles. As the fields are perpendicular to each other, they are called cross fields. ठीक है? So this is a important term. Cross fields क्या है? Electric field and magnetic fields, when acting perpendicular to each other, they are referred as cross fields. Uses the fact that frequency of revolution of charged particle in magnetic field is independent of its energy. The particles move most of the time inside two semicircular discs like metal container D1 and D2, which are called Ds as they look like the letter D. The diagram is there on the next page. 1D and 2D. Inside the metal boxes, the particle is shielded and it is not acted on by the electric field. The magnetic field, however, acts on the particle and make it go round in the circular path inside the D. Every time the particle moves from one D to another, it is acted upon by the electric field. The sign of the electric field is changed alternately in tune with the circular motion of the particle. This ensures that particle is always accelerated by the electric field. Each time the acceleration increases the energy of the particle. As energy increases, the radius of circular path increases, so the path is a spiral one. That is what I was trying to let you guys know. Because of this component, X component, the radius is continuously going to increase and thereby it is going to follow a spiral path. The whole assembly is evaluated to minimize the collision between ions and the air molecules. A high frequency alternating voltage is applied to the Ds. In this case, figure 4.8, the positive ion or positively charged particles are released at the center P. They move in a semicircular path in one of the Ds and arrive in gap between the Ds in time interval T/2. So these are the two Ds. ये जो dots है, they are basically out of the paper magnetic fields. Magnetic field coming out of the paper. Or this is the motion of charged particle which has been depicted. So जब वो इस portion में या इस portion में रह रहे हैं, it will not experience any electric field. But when it is moving in this zone between the two Ds, it is going to experience the electric field as well. Electric field experience करेगा तो उसका speed जो है that is going to increase. Is that okay? Yes, sir. Or in a time interval T/2 where T is the period of revolution. तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में अगर T टाइम लग रहा है, यहां से ये वाला वो पैरेलल प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है, यहां से यहां आने में उसको T/2 टाइम लगेगा और यहां से यहां जाने में भी T/2 टाइम लगेगा. इन दोनों के बीच में देयर इज सम गैप जिसमें वो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता रहेगा.
Time period of revolution is 1 by Vc or 2 pi m by qb. Qb is magnetic field, 2 pi m is mass. Vc is equal to qb by 2 pi m. This frequency is called cyclotron frequency for obvious reasons, and it is denoted by Vc. So this formula is again important for us. Cyclotron frequency is charge of the particle into magnetic field divided by 2 pi into mass of the charged particle. The frequency Va of the applied voltage is adjusted so that polarity of these is reversed in the same time that it takes the ions to complete one half of the revolution. The requirement Va is equal to Vc is called resonance condition. So resonance condition, frequency Va of the applied voltage एज इन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज कीप्स ऑन चेंजिंग. इट चेंजेस एज लाइक दिस. Va is equal to V naught sin ओमेगा टी प्लस पाई. ठीक है, इस तरीके से ये चेंज करता है विथ टाइम. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. It's not constant like ये डायरेक्ट करंट डीसी की तरफ फिक्स नहीं होता है और इसकी वजह से पोलैरिटी चेंज होगा. अलग अलग टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगह पे, सॉरी ये चार्ज पार्टिकल जो होगा यहाँ पर जिस टाइम पे आएगा यहाँ पर किसी और टाइम पे आएगा. तो जिस समय ये यहाँ पर आ रहा है उस समय हर जगह पे फील्ड मान इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन. हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं ना, सॉरी जब यहाँ पे मूव कर रहे हैं ये तो फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में है तो इसको और एक्सेलरेट कर देगा इस डायरेक्शन में. जब ये यहाँ पर आएगा क्रॉस करने लगेगा तो मेरा फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ का तो इसको फर्दर एक्सेलरेट कर देगा. एक्सेलरेट करेगा तो ये लार्जर सर्कल में जाना चालू होता है. ठीक है, उसको अकाउंट करके ही यहाँ पर पाथ जो है उसको स्पाइरल बनाना. तो हर बार यही होगा, यहां से जब क्रॉस कर रहा होगा फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा. जब यहां से क्रॉस कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्या होता है सर वापस बोलोगे क्या? माइनस dv बाई dr. हाँ मैं बता देता हूँ. देखिए ये चार्ज पार्टिकल जो है हमारा वो ऐसे मूव कर रहा है. द आइडिया इज जब वो यहां से क्रॉस कर रहा है तो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन. अगर हाँ. इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा तो इस वेलोसिटी को फर्दर इंक्रीज कर देगा वो. राइट. हाँ. तो जब मेरा चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस समय मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा. ठीक है, जब वो यहां से मूव करने लगेगा आफ्टर सम टाइम ऐसे तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा. अच्छा. और उस तो समय सिर्फ यहीं पर फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं रहेगा, उस समय ये पूरे स्पेस में फील्ड इस डायरेक्शन में ही रहेगा. मेरा पूरे सर्कुलर इसमें राइट साइड पे होगा. वो पूरे सर्कुलर नहीं, ये दोनों डी के बीच में ये अच्छा, वाला गैप में. गैप में उस टाइम पे फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा जब वो यहां से क्रॉस कर रहा होगा चार्ज पार्टिकल. तो अच्छा, तो फिर लाइक वो लेफ्ट एंड राइट दोनों के लिए फिर होगा ना, मतलब अगर हाँ, लेकिन मेरा चार्ज पार्टिकल जो है वो यहाँ पे ऐसे क्रॉस किसी और टाइम पर कर रहा होगा, ऐसे क्रॉस किसी और टाइम पे कर रहा होगा. ठीक है, हाँ ठीक है. जैसे सपोज यहाँ t इज इक्वल टू 0 से चालू किया तो ये वाला क्रॉसिंग वो करेगा t इज इक्वल टू t बाई 2 पर. ये वाला क्रॉसिंग कब करेगा? t पर.
ये वाला क्रॉसिंग t इज बस वो- इक्वल टू 3t/2, ये वाला क्रॉसिंग t इज इक्वल टू 2t पर, ठीक है। हम्म ये वाला क्रॉसिंग वो करेगा t इज इक्वल टू 5t/2 पर, और ये क्रॉसिंग इट विल डू एट t इज इक्वल टू 3t, ठीक है। तो जब हमारा हम्म, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में, तो ये इन तीनों टाइम पे हमारा फील्ड हर जगह पे कहाँ रहे, क्या रहेगा, यहाँ पर ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ठीक है, ऑल द और टाइम। सो एट t/2, 3t/2, 5t/2, इन तीनों टाइम पे हमारा फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सर डिस्क के अंदर फिर क्या रहेगा? देखो मतलब डी। डिस्क के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओवरऑल अप्लाई हो रहा है इस हम्म। डायरेक्शन में, ये तीनों टाइम। हाँ। बट एक ये होता है कि किसी भी कंडक्टर, क्लोज्ड कंडक्टर अगर है ना, किसी भी हम्म, शेप का क्लोज कंडक्टर है, हाँ। उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पास कर सकता है। अच्छा ओ। ये कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है सर। Electric field lines cannot cross the closed conducting surface, ठीक है। तो हम्म। फील्ड लाइंस यहाँ पर आकर के डिसअपियर हो जाएंगी और फिर यहां से अपीयर होंगी। तो ये डी जो है, ये एक मेटालिक सिस्टम है। तो इस ये सिर्फ ऐसा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी है? नहीं, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी तो होता मैग्नेटिक फील्ड पास कर सकता है ना फिर है। मतलब मैग्नेटिक कंडक्ट। फील्ड पास कर सकता है, ओके सर। ठीक है। हाँ सर। अभी क्लियर हुआ। हाँ सर, समझा। और ये चीज भी समझ में आ गया कि ये जो तीन टाइम मैंने बताया था, ये तीन टाइम पर मेरा फील्ड का डायरेक्शन हर जगह पे ये वाला है, ठीक है। t इज इक्वल टू t/2, t इज इक्वल टू 3t/2, एंड t इज इक्वल टू 5t/2 पर, ठीक है। ऑन कॉन्ट्ररी, जब मेरा चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, and this is happening at t is equal to capital T is equal to 2t, and t is equal to 3t, ठीक है। इस हाँ टाइम सर। पे हमारा फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, एवरीवेयर, ठीक है। तो सो टाइम यहाँ लोग ऐसा मेंशन करेंगे कि मतलब ऐसा स्टैंडर्ड टाइम है यार? ये स्टैंडर्ड टाइम है, और ये कैपिटल टी की वैल्यू क्या है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। ओके सर। इज दैट ओके? यस सर। हम्म। सो एंड अब ये जो टाइम पीरियड है जो ऊपर से हमने निकाला है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, अगर यही फ्रीक्वेंसी हमारे अप्लाइड वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो अप्लाई किया है यहाँ पर हमने, उसका भी फ्रीक्वेंसी वैल्यू यही अगर रहता है, वीसी ही रहता है, तो it becomes a condition of, if VA is equal to VC, it is called resonance condition. The phase of supply is adjusted so that when positive ion arrives at edge D1, the D2 is at lower potential and ions are accelerated across the gap. तो जब वो यहां से यहां D1 के एज पे से आ रहा है, एज पे आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होना चाहिए, D1 से D2 की तरफ होना चाहिए, तभी वो एक्सेलरेट होगा। और जब D2 के एज पर आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये होना चाहिए,
इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये 5 पैरामीटर जो है ना, दिस इज कॉल्ड फेज। वेव्स का जो फेज होता है वैसे ही ये भी फेज है, ठीक है। हाँ सिनोसाइडल सर। वेव्स होते हैं, उनके फेजेस होते हैं। उसी तरीके से हमारा अल्टरनेटिंग करंट का भी फेज होता है। So that has to be adjusted properly. Inside the D's, the particle travel in region free of electric field. ये वाले जोन में जब तक वो ट्रैवल करेगा, it will not be affected by electric field. The increase in their kinetic energy is QV each time they cross from one D to another. When they are crossing from one D to another D, D1 to D2, then there is going to be an increase in energy every time, and it is equal to QV. They cross from one D to another. V refers to the voltage across the Ds at that time. From equation 4.5, it is clear that radius of their path goes on increasing each time their kinetic energy increases. The ions are repeatedly accelerated across the Ds until they have required energy to have a radius approximately that of Ds. They are then deflected by magnetic field and leaves the system from this exit path via an exit slit. And at time of exit, they will have a velocity which is going to be given by V is equal to QB capital R by M, where R is the radius of the trajectory at exit and equals the radius of a D. Hence, the kinetic energy of the ion is half mv square, which is half q square b square r square by 2m. Q square b square r square by 2m. That becomes the kinetic energy of the exiting charge particle. The operation of cyclotron is based on the fact that time for one revolution of an ion is independent of its speed or radius of its orbit. It is only affected by, or it is only dependent on what? Charge of the charge particle and the magnetic field and its mass. ठीक है? Heavier the mass, larger will be the time period. Q अगर चार्ज बढ़ाया आपने तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ाया तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड कम चाहिए हमको या ज्यादा चाहिए? अगर मुझे बहुत फास्ट करना है तो टाइम पीरियड जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। तो क्या करेंगे हम? Q और B को बढ़ा के रखें। टाइम पीरियड क्यों कम चाहिए? जितना कम टाइम पीरियड होगा उतना ज्यादा साइकिल ये करेगा। बात समझ में आ रहा है? और हाँ उतनी सर। बार उसका क्यूबी अमाउंट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो जितने टाइम बढ़ेगा उतना फास्टर वो मूव कर पाएगा, उतनी ज्यादा उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। हाँ सर। The cyclotron is used to bombard nuclei with energetic particles so accelerated by it and study the resulting nuclear reactions. It is also used to implant ions into solids and modify their properties or even synthesize new materials. It is used in hospital to produce radioactive substances which can be used in diagnosis and treatment. ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अल्फा गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, अल्फा रेस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, और नहीं पढ़ा होगा तो हाँ अभी हाँ। फिजिक्स में पढ़ेंगे। हम्म, पढ़ा है केमिस्ट्री में। हम्म, तो जो केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, तुमको बताया था, वो एक्चुअली फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ना है हमको, सेम चीज पढ़नी है। तो उसमें भी अल्फा पार्टिकल निकलता है पोलोनियम से
अल्फा पार्टिकल निकलता है, उसको साइक्लोट्रॉन के थ्रू बेसिकली हम एक्सेलरेट करते हैं और फिर बॉम्बार्ड करते हैं वो गोल्ड फॉइल पे। इज दैट ओके? तो बेसिकली यस सर। इसी को यूज करते हैं हम वहां पर भी हाई स्पीड हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स जनरेट करने। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर हैविंग फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज, what should be the operating magnetic field for accelerating proton? फ्रीक्वेंसी कितना है? 10 मेगाहर्ट्ज है फॉर द प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना चाहिए? तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m। चार्ज पता है हमको, मास पता है प्रोटॉन का, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पता कर सकते हैं। इट्स 10 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? 10 इंटू 10⁻6 हर्ज। Q is 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। इज दैट ओके? मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पता करना है हमको, और यहाँ पर 2 पाई इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 1.167 इंटू 10⁻⁻27 27 kg। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो नीचे में 10⁻⁻8 रहेगा, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू 2 पाई इंटू 1.67। 1.67 इज 5/3 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻7। हेलो? हाँ सर। So B will be equal to 2 pi. 1 by 1.67 can be written as 5 by 3 into 10⁻⁻8 or 10⁻6 or 10 to 10. This will become 10⁻7. इन सबको solve करेंगे हम, तो 2 5s are 10, एक और हो गया। So this and this will be gone. It will be pi by 3 Tesla. Pi is 3.14 by 3, which can be roughly taken as 1.05 Tesla. That is the magnetic field which is required to accelerate the electron. Is that okay? If the radius of its d is 60 centimeter, what is the kinetic energy in mega electron volt of the proton beam produced by the accelerator? ठीक है। और देखिए, हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है, ठीक है ना? तो लेट अस कम बैक टू सर्कुलर मोशन। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 2 पाई, और सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल। इज दैट ओके? हाँ सर। एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? इट विल बी 2 5 पाई अपॉन टी, राइट? या फिर 2 पाई एफ। मेकिंग सेंस? दिस विल बी द एंगुलर स्पीड। लीनियर स्पीड क्या हो जाएगा?
omega r, that is 2 pi f into r. क्लियर है? हाँ सर। हमारे पास f की वैल्यू है 10⁻7 हर्ज, 10 मेगा हर्ज, 10⁻7 हर्ज। r की वैल्यू है हमारे पास, इट इज इक्वल टू हाउ मच? 60.6 मीटर। Therefore velocity का हमको पता चल जाएगा, it will be 2 pi into 10⁻7 into 0.6, which will be 1.2 pi into 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो exit velocity क्या होगी हमारी? This will be the exit velocity. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो it will become 1.2 का मतलब हो गया 1.2 into 3.14, 44, 60, 4, 12, 12, 4, 16, 6, 1, 3, 36, 3.77, 3.77 into 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई इसकी स्पीड। अब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? एग्जिट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू half m into v square, that is half into 5 by 3 into 1.67 is 5 by 3 into 10 to the power minus 27 into 3.77 into 3.77 into 10 to the power 14 joules. Is that okay? अब इसको हमको कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एंड इट इज गिवन दैट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 13. So this much kinetic energy will be equal to how much? 1.6 into 10 to the power minus 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट व्हाट? 9.6। हाँ, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 18.85 into 3.77 into 14, 27 और 13, ये तीनों गायब हो जाएंगे। इज दैट ओके? 13 plus 14, 14 plus 13 will become 27, or minus 27 and plus 27 gone. So this divided by 2 into 3 into 1.6, ये कैंसिल करेंगे तो 1.26। सर 5/3 का सर। 5/3 is 1.67 बेटा, अच्छा ओके सर। राइट? 5/3 को डिवाइड करोगे ना, हाँ 1। हाँ सर। 1.666 आता है, which is 1.67। ये दो गया तो 9.43 लिख सकते हैं इसको। इसको कैंसिल करेंगे ये लगभग 0.8 हो जाएगा। 16 8 is 128, so this will be 0.8, I can roughly take, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 24,
34 34 4 3 8 9 72 72. So this much मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे थोड़ा सा कम रहेगा एक्चुअली, यहाँ पर भी हमने थोड़ा बढ़ा दिया है और यहाँ पर भी थोड़ा बढ़ा दिया है, एक इन्फ्लेटेड वैल्यू लिया है. इट विल समवेयर लाइक 7.5 रफली ले सकते हैं, 4 को ड्रॉप कर देंगे, या मे बी 4 8 टाइप्स रहेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो रफली दिस इज गोइंग टू बी आवर वैल्यू फॉर काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Is that okay? Are we getting this point? ये बात क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर. Very good. और एक सेकेंड, ये वाले पार्ट से ये पढ़ा रहा था बट इट वाज नॉट दैट गुड, चला गया था. ये सारे पॉइंट्स तो हो गए हमारे. हाँ, देयर आर फ्यू लिमिटेशंस टू इट दैट वी मस्ट नो. द साइक्लोट्रॉन, द फर्स्ट लिमिटेशन पॉइंट ये दिख रहा है आप लोगों को. फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इट कैन नॉट एक्सिलरेट द पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स बियॉन्ड सी. सी के बियॉन्ड नहीं एक्सिलरेट कर सकता है. हेलो, हाँ मैं बात कर देख. हेलो, हाँ सॉरी. हाँ सर. हाँ, इट कैन नॉट एक्सिलरेट द पार्टिकल्स बियॉन्ड सी. सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा की स्पीड पर नहीं लेके जा सकता है. So the maximum velocity that we can achieve through it is going to be c, velocity of light. In fact, it is going to have velocity much lesser than speed of light. Like c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸. ठीक है, हमारा जो वेलोसिटी वो लास्ट वाले में पहुंचा था दैट वाज 1.7 इंटू या 3.77 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड. राइट, इट इज स्टिल 5 कितना टाइम्स, लाइक अराउंड 8 टाइम्स लेसर है देन स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, सो लगभग इस रेंज के स्पीड तक हम पहुंच सकते हैं इसके थ्रू, बट नॉट मोर देन दैट. इज दैट ओके? Let us read the point carefully. It is saying particle to the velocity as high as comparable to the velocity of light. The reason is that at these velocities, the mass of the particle increases with increasing velocity. According to which, according to this particular law, where m naught is rest mass of the particle and c is velocity of light. Therefore, the time t, that is pi m qb, taken by the particle to complete the successive semicircular path goes on increasing. Thus, the particle becomes more and more out of step with the applied alternating potential difference until it can no longer be accelerated further. For a given energy, the velocity of an electron is much greater than that of a more massive particle like proton or deuteron. And so, the relativistic increase of mass is correspondingly much greater. Therefore, the electrons very quickly of get out of step with the potential difference. Hence, cyclotron is not successful in accelerating electrons.
In some machines, the frequency V naught of the potential difference is decreased as the particle accelerate in such a way that the product V naught M remains constant and potential difference is always in step with rotating particle. Such machines are called cyclotron, synchronous cyclotron or synchrocyclotrons. So what it is saying is दो चीजें हैं. मास अगर हम बढ़ाते हैं, मास अगर हमारा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. इज दैट ओके? टाइम पीरियड बढ़ा तो सर्कल कंप्लीट करने में टाइम हमको ज्यादा लगेगा. ठीक है, तो जितने रिवॉल्यूशंस लेने चाहिए थे उतने रिवॉल्यूशंस हम नहीं लेंगे, मतलब जितना स्पीड इंक्रीज होना चाहिए था उतना नहीं होगा. इज दैट ओके? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. हाँ. ठीक है. And this puts a realistic limit that the speed of particle is not going to be increased beyond a safer limit, and that limit is much less than, not much, but yeah, less than speed of light. और दूसरी चीज, एक चीज और बोला है इसने कि इलेक्ट्रॉन्स को इससे साइक्लोट्रॉन से हम नहीं एक्सेलरेट करते हैं. ठीक है, क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है और उसका चेंज इन मास जो होगा बहुत ज्यादा होता है. तो टाइम पीरियड ड्रॉप जो होता है, ये टी का ड्रॉप, दैट बिकम्स वेरी लार्ज. कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल, दैट इज द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस. न्यूट्रॉन को हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं. कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू वेरी स्मॉल मास एंड acquiring very high speed. So ये तीन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स इसके हैं. Kinetic energy of particles accelerated by the electrons. So kinetic energy is equal to ये r. सबसे पहले radius, final radius of the path. Let r be the outside radius of the d's and v max be the speed of particles when traveling in path of radius of this radius. ठीक है, पिछला वाला जो सॉल्व किया था आप लोगों ने ध्यान दिया था ना, वी डिड दिस ओनली. Vmax मैंने निकाला था, कैसे निकाला था? Vmax was R, capital R, the outer radius multiplied by omega किया था, और ओमेगा क्या था? R into 2 pi by 1 by t, 2 pi by t, which is R into 2 pi f, right? Making sense? R is equal to mv max by qb, और v max is equal to qb r by m. ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा. f के बदले हम क्या रखेंगे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. ओमेगा कैसा आया सर? क्या क्या? ओमेगा कैसा आया? अरे ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या हाँ बट एंगुलर वेलोसिटी. वो आर की इक्वेशन में एंगुलर वी बाई वेलोसिटी क्यू भी है वाज ना. 2 pi by t. हाँ वो याद है बट हम वी बाई क्यू भी था ना इसमें तो. हाँ, t के बदले रहेगा ना. अच्छा ओके हाँ समझ गया, ठीक है. Time period is equal to 1 by frequency, which is equal to 2 pi m by qb. अरे यार मैंने समझा. एक सेकंड रुक जाओ, मैंने कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी तो नहीं किया था. दिस इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इसमें तो नहीं किया है. 2 pi r f. अच्छा ठीक है.
एफ इसमें एक्चुअली फ्रीक्वेंसी दिया ही हुआ है ना डायरेक्टली 10 मेगाहर्ट्ज, तो उसको लेकर के मैंने कर लिया, यहाँ से फिर किसी चीज को टच नहीं किया मैंने। ठीक है, ठीक है। वहां पे हमारे पास ये था कि फ्रीक्वेंसी वाज डायरेक्टली गिवन, ठीक है ना, we didn't had to find frequency which was directly given. Making sense? Yes, sir. Other way around is we may have a radius circling जो हमारा करता है ये, उसका रेडियस जो होता है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी बाय क्यूबी, ये एक्सप्रेशन रहता है। और ये एक्सप्रेशन आता है, ये भी डेराइव किया हुआ है हमने, यहाँ पर एक पेज पीछे आएंगे तो वी हैव दिस force due to magnetic field, लेफ्ट हैंड रूल, और सर्कुलर मोशन होता है तो mv स्क्वायर जो होता है दैट mv स्क्वायर बाय r दैट इज इक्वल टू qvb। यहाँ पे साइन थीटा लिया हुआ है, लाइक इफ इट इज नॉट डायरेक्टेड perpendicular to the magnetic field, velocity of the particle, charge particle is not directed perpendicular to the field, तो उस केस में साइन थीटा कंपोनेंट रहेगा, v साइन थीटा विल बी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड v cos थीटा विल बी along the field। ठीक है, तो along the field वाला will have no effect, but sine component will have, because of the sine component the charged particle will start doing the circular motion। तो एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इससे हमारा ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आता है आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाई क्यू वी। ठीक है, अगर वेलोसिटी एंड बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा विल बिकम 90 डिग्री एंड साइन थीटा विल बी 1, तो इट विल बिकम एम बी बाई क्यू बी, रेडियस इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। ठीक है, coming back to that is what given over here, r is equal to mv by qb। ठीक है, और यहाँ पर v max एंड r को कंपेयर किया गया है, r इज द मैक्सिमम रेडियस, और जब मैक्सिमम रेडियस रहेगा तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम रहेगा, कीपिंग ऑल अदर थिंग सेम। देयरफॉर v max is equal to qb r by m, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, अगर ये वी मैक्स है तो मेरा टाइम पीरियड क्या रहेगा या फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी मैक्स विच इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय क्यू बी क्यू बी कैपिटल आर इंटू एम। ये आर आर कट गया, यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे 2 पाई m बाई क्यू बी। इज दैट ओके? Yes, यहाँ sir. पे जो यूज किया है, सॉरी नेक्स्ट पेज पे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई m, राइट, या यहाँ पे जो दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी बाई 2 पाई m, राइट, so they are all related things। maximum kinetic energy is equal to half m v max square is equal to q square b square r square by 2m। ठीक है, मेकिंग सेंस? Yes, sir. इसमें सिर्फ ये एक चीज सप्लीमेंट करके हम रख सकते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, 1 बाय फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई बाय क्यू बी। ठीक है ना,
In cyclotron, the function of magnetic field is only to bring the charged particle in the gap again and again. That is cycling. The particle in the gap is accelerated by electric potential difference. In linear accelerator, there is no need of magnetic field. However, the length of such accelerator become very large depending upon the energy to which the particle is to be accelerated. So अगर linear हमारा accelerator रहेगा तो the length of the accelerator has to be very large. तब जाकर के हमको large kinetic energy change मिलेगी. ठीक है. साइक्लोट्रॉन में बेनिफिट क्या है? ये डिस्टेंस हमको लार्ज रखने की जरूरत नहीं है. शायद इतना बड़ा गोला will be sufficient enough to create very large energy. ठीक है ना? क्योंकि कई एक बार स्पाइरलिंग होएगी, जितनी बार होएगी क्रॉस करेगा वो उतनी बार मेरा काइनेटिक एनर्जी क्यूबी से इंक्रीज करेगा. सेम चीज यहाँ पे अगर करना होगा तो ये सारे डिस्टेंस अगर यहाँ पर मान लो 25 बार जाता है 0.1 का, ठीक है, 25 बार इधर से 25 बार इधर से और 0.1 मीटर है तो 0.1 इंटू 25 से 2.5 मीटर हो गया. 2.5 मीटर का स्ट्रेट क्रिएट करना और ऐसे क्रिएट करने में दिस इज गोइंग टू कंज्यूम मच लेसर स्पेस. मेकिंग सेंस? Yes. Okay. Force on a current carrying conductor placed in uniform magnetic. अभी तक जो हम पढ़ रहे थे that was force on a moving charge. ठीक है. सर क्लास कभी तक है? और 6:35-40 तक लूंगा, 20 मिनट और. ठीक है सर. ठीक है. Okay. Okay. We will be back on open board. Let me move on to the next page. There's second 0107. Okay. Force of the current carrying conductor. See, force on a current carrying conductor जो है due to a magnetic field. सपोज यहाँ पे एक रीजन है एंड इस तरह से डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड है. डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ द प्लेन. ठीक है. इनटू नहीं, आउट. इज दैट ओके? आउट मतलब हम सबकी तरफ आ रहा है. आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक और सी. अब यहाँ पर एक मैं वायर रखता हूं which is carrying some current. ये एक वायर है of length L. Length L and there is a current flowing in it in this particular direction. Current is I. So the expression was given by F vector
is equal to F vector QVB, right? Moving charge पर the force was Q V vector cross B vector, right? Is that okay? अभी V को क्या लिख सकते हैं हम? dl dt या dr dt, लेंथ ट्रेवल्ड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है ना? Q into distance traveled per unit time may also be written as charged move dq dt into length qv is same as या q dl dt और dq dt into l, ये दो क्वांटिटीज सिमिलर तरीके के क्वांटिटीज हैं. कैन वी अप्रिशिएट दिस? व्हाट इज हैपनिंग इज, इसमें एक चार्ज कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है और यहाँ पर वी आर फिक्सिंग द लेंथ, ठीक है, और कितना चार्ज पर सेकेंड इस लेंथ से पास कर रहा है. दैट इज हाउ वी आर डिफाइनिंग द राइट साइड ऑफ द थिंग. आर वी गेटिंग दिस पार्ट? ये बात समझ में आ रही है? एक कंडक्टिंग वायर है यहां से यहां तक, ठीक है, इसमें एक चार्ज इस एंड से इस एंड तक मूव कर रहा है with a speed of dl dt. Making sense? Can I also say the flow of charge rate through this conductor, ये कंडक्टर जो है इसके थ्रू flow rate of charge is how much? dq dt and into L कर लेते हैं. So this right hand parameter and left hand parameters are precisely the same. Is that okay? It's two ways of representing the same fact. अगर कोई चार्ज, बेसिकली चार्ज का फ्लो रेट जो है, ठीक है, dq dt जो है दैट इज करंट, मतलब एक सेकेंड में dq चार्ज मूव किया बाय सर्टेन डिस्टेंस, या इस पर्टिकुलर पोजीशन से इस पर्टिकुलर पॉइंट से dq चार्ज dt टाइम में मूव किया, राइट? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को कि नहीं आ रही है? अरे सर समझ में। अदर्स? Yes, sir. ओके, आ रही है तो फिर ठीक है, कुछ बोल ही नहीं रहे तो मतलब मुझे लग रहा है. ईशान, व्हाट अबाउट यू? ईशान, हाँ सर. आर यू गेटिंग दैट? यस सर, यस सर. q into dl dt is equal to dq dt into l. तो इस चीज को यूज करके बेसिकली हम we can transform this equation into f vector is equal to I dl vector क्रॉस d वेक्टर और इसको df वेक्टर, d ideal into d sorry ideal वेक्टर क्रॉस d वेक्टर इज इक्वल टू df वेक्टर. ये डिफरेंशियल फोर्स होता है और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो f वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल
I dl क्रॉस b वेक्टर। अच्छा, इस फोर्स को डिस्कवर, ये वाला एक्सप्रेशन जो था इसको डिस्कवर किया था, देयर इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड लॉरेंज, इजेड लॉरेंज। ठीक है, so therefore this expression is also known as Lorentz law, and the force on a charge, sorry, force on current carrying conductor kept in a magnetic field, or force applied by the magnetic field on a current carrying conductor is also referred as Lorentz force. Is that okay? Force experienced by a current carrying conductor by a magnetic field is given by, or is known as, is known as and this is called Lorentz. ठीक है, obviously it is going to follow the two laws, क्या क्या, डायरेक्शन जो होगा that is going to be given by what, IL dl जो है, L का डायरेक्शन वेक्टर, करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मेरा L वेक्टर रहेगा। L वेक्टर को किस तरफ टर्न करना है हमको, B वेक्टर के अलोंग। ठीक है, A क्रॉस B वेक्टर कैसे हम निकालते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मतलब क्या होता है, A वेक्टर को B वेक्टर, A वेक्टर की तरफ पाम को रखिए और उसको B वेक्टर की तरफ टर्न करिए। ठीक है, उस टाइम पे जिधर आपका थंब का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर होगा, राइट। सी वेक्टर अगर ए वेक्टर इसके अलोंग है, पाम के अलोंग, बी वेक्टर यहां पर है ऐसे, तो ए क्रॉस बी इज गोइंग टू बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब। मान लो बी इधर है, तब क्या होगा, पाम को उल्टा करना पड़ेगा, ए से बी इधर आएगा और सी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगा। इज दैट ओके? तो अब सारे लोग, आई का जो डायरेक्शन है ये मेरा एल वेक्टर हो जाएगा। इज दैट ओके? हाँ और मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो प्लेस योर palm in that direction and try to find out in which direction the force will be applied on this conductor. Will it be towards right or will it be towards left? Try to find out. सारे लोग ये एक्सरसाइज करो, नहीं तो फिर सीखोगे नहीं और बहुत प्रॉब्लम होती है। आर वी डन? एक बार वापस बोलोगे क्या करना। हाँ, आपको अपने पाम को इसके डायरेक्शन में, इसके मतलब करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो डायरेक्शन में पाम को रखना है। और आपका बी वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू फ्रॉम द स्क्रीन। हाँ तो आपको
आई का जो डायरेक्शन है वही डीएल वेक्टर का डायरेक्शन रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ हाँ रही है? हाँ सर। आई का डायरेक्शन इज सेम एज डीएल वेक्टर का डायरेक्शन। अगर आई इस डायरेक्शन में होता तो एल वेक्टर नीचे की तरफ होता। सो जिस डायरेक्शन में वो है उस डायरेक्शन में अपने पाम को ओपन करके रख दीजिए, ऐसे। ऐसे मतलब यहां पर तो वर्टिकल दिख रहा है ना, तो इसको ऐसे रख लेंगे। ठीक है, एंड बी वेक्टर क्या है? इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ योर फोन और लैपटॉप। इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू बिकॉज आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ सर। So you have to turn your palm towards yourself and see what is the direction of your thumb. That direction of thumb is going to indicate the cross product of these two vectors, सब राइट में। right? So the force it is going to experience is in this direction. Is that okay? सारे लोग ने इंडिविजुअली ट्राई किया? आदित्य, कर्तव्य, Yes, sir. Yes, it's sir. very important that you try it. नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। So one method is, ये तो यूनिवर्सल वेक्टर रूल है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर होता है। पहले वेक्टर की तरफ पाम को रखिए, राइट हैंड का पाम ओपन करके आपकी उंगली जो होनी चाहिए दैट शुड बी डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, and you have to fold your palm in a direction such that it should be folded towards the second vector. So product vector जो होगा that will be the direction of product vector will be given by the direction of thumb, right thumb. Is that okay? क्लियर है? तो ये एक तरीका है लॉरेंस लॉ को अप्लाई करके फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। इज दैट ओके? क्लियर है? और एनी डाउट? No, sir. समझ गए नो सर। सर। क्लियर है? ओके। दूसरा होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अगर हम अप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करेंगे? ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ठीक है, ये वाला राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, इसमें ये जो इंडेक्स फिंगर होता है, द इंडेक्स फिंगर इज ऑलवेज बी वेक्टर। क्या होता है ये क्या होता है? मैग बी वेक्टर। बी वेक्टर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इज दैट ओके? इंडेक्स फिंगर क्या है? बी मैग्नेट। वेक्टर। ठीक है, मिडिल फिंगर इज आई या डीएल वेक्टर। इज दैट ओके? ये क्या है? मिडिल फिंगर इज आई और डीएल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आई और डीएल वेक्टर। क्लियर है ये बात? अब बचा क्या? थंब। थंब इज गोइंग टू गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मोशन। फोर्स, फोर्स, हाँ सर। और फोर्स से हमको डायरेक्शन ऑफ मोशन भी मिलता है। ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मोशन उसी तरफ होएगा। ठीक है, ये क्या है? बी वेक्टर। ये क्या है? आई डायरेक्शन ऑफ करंट या डीएल वेक्टर। और ये क्या है? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, लेट अस अप्लाई इट ओवर हियर। बी किधर है मेरा? सॉरी, बी किधर है मेरा? मेरी तरफ पॉइंट करता हुआ। तो ये वाला फिंगर किधर पॉइंट करेगा? मेरी तरफ। कर रहा है, दिख रहा है ना करता हुआ? हाँ सर। सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं इसमें। तो मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है। करंट किधर जा रहा है? करंट ऊपर जा रहा है। तो ये कैसे दिखेगा? नहीं, ये दोनों
तो ये हो रहा है, ठीक है। इट्स लाइक दिस, इट इज कमिंग टुवर्ड्स मी, ठीक है। द करंट इज गोइंग upward in this direction. The magnetic field is coming in towards me, and in this scenario the force is on rightward. Is that okay? Both of them are giving same thing. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ सर। ये दोनों चीजें क्लियर है? ठीक है ना? तो नंबर 1, in direction of magnetic force। अच्छा, यहीं पे आज के लिए मैं रुक जाऊंगा। कल फिर हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से अराउंड सेम टाइम। कल लेकिन 4:35 से मैं स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है। आज थोड़ा सा डिले हो गया, 9th वाले बच्चे को पढ़ा रहा था और टाइम का मुझे ध्यान नहीं रहा, गड़बड़ हो गया। कल 4:35 से मैं स्टार्ट कर लूँ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, और ये रूल मैं आप लोगों से सुनूंगा कल के दिन, या कुछ और एग्जांपल्स दूंगा और पूछूंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंड palm रूल, और दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में इंडेक्स फिंगर is equal to B vector, middle finger is equal to I dl vector, and then thumb is equal to force vector और velocity vector, ठीक है। याद रहेगा? हाँ सर। I'll be uploading this lecture as well soon। बाकी पुराने सारे lectures मैंने अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, एंड ये पीडीएफ भी भेज देता हूँ, ठीक है। ओके, बाय फॉर नाउ। कल फिर से 4:30 मिलेंगे, 2 घंटे का लेक्चर लूंगा, 4:30 to 6:30।